ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو وائس آف سندھ لندن، خبروں، تجزیوں اور تبصروں پر مشتمل پروگرام آج کا احوال کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر آپ کی میزبان شان سے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ کے لیے دعا کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ 17 فروری 2024 ہفتے کے دن یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لندن کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے رہنما سوٹ لوہار اور سسوئی لوہار کے والد ہدایت لوہار کو کل صبح نصیر آباد میں مسلح افراد نے قتل کر دیا۔ وہ اسکول سے چھٹی کے بعد گھر جا رہے تھے۔ مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ یاد رہے کہ ہدایت لوہار 17 اپریل 2017 سے جولائی 2019 تک لاپتہ رہے ہیں، جن کی آزادی کے لیے ان کی بیٹی سورٹ اور سسوئی لوہار نے کئی سال تک جدوجہد کی تھی۔ ہدایت لوہار پیشے سے ایک استاد تھے اور 1980 کی دہائی سے سندھ کے ایک سرگرم سیاسی کارکن بھی رہے ہیں۔ وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے رہنما سسوئی لوہار کی رہنمائی میں نصیر آباد لاڑکانہ بائی پاس پر ہدایت لوہار کی لاش رکھ کر دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی دھرنے کو خطاب کرتے ہوئے سندھ تحریک کے رہنما سوریا سندھی نے 3 دن سوگ کا اعلان کیا۔ خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہدایت لوہار سندھ ترقی کے حقوق کے لیے جدوجہد میں ثابت قدم رہا۔ اس کی جدوجہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ہم انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہدایت لوہار کی بیٹی نے کہا، ملک کے مانن کے تحفظ برام تا کیو تا کتے جا پٹرا لاؤ ہی کیڑی ریاست وا جے میں اکڑو فرد سکیور کو انسان سکیور نہ ہے اور اسی سکیور نہ ہو سبھاڑے تا سکیور میں رہندا تانجا بچہ سکیور میں رہندا۔ یہ منجو بابا پہریوں قتل لائے ہن ریاست لائے یا جاری دل اسٹریٹجی ہے جکا ہلے پئی۔ جے کوئی شعور یافتہ انسان ہوندا ان کے کھمبے گم کیو ویندو، ان جو قتل کیو ویندو۔ ماں UN کا ڈیمانڈ کندس کہ اگر انصاف جو عدالتوں آہن تو مکے ہیر انصاف کیو ونے۔ ماں انتظار نہ کندس اور جو نہ ان ملک میں باغی پیدا تھین اور جو نہ ان ملک میں ماڑو ہتھیار پاڑ کھڑن اور ان ملک میں ماڑو پاڑ انصاف کرندو۔ ماں اگر عدالتوں میں ویندا مکے انصاف نہ ملندو تو ماں پاڑ ہتھیار کھڑندا۔ جڏهن تا اسان کي ۽ پوري قوم کي خبر آهي ته بابا جو قتل قومي مفادن تحت کيو ويو آهي۔ بابا جو تعلق قوم پرستن سان آهي، بابا جو عشق قوميت سان آهي، بابا جو عشق سنڌيت سان آهي۔ انهن ان ڳالهه کان انڪار ڪري ڇڏيو۔ انهن انڪار ڪري ڇڏيو ته هي جيڪا FIR آ اسين اها لوڙي ڇڏيون، هن خون کي اسين رائگان ڪري ڇڏيون۔ FIR میں اسان جي اها ڊيمانڊ ہوئی ته 2017 میں جيڪا حقيقت آهي اسين اها بیان کئی سے ته 2017 میں بابا کے اسکول ماں کھمبے گم کيو ويو، جے میں ریاستی دلن جی ہکڑی شہر رہجي وئی، جے ماں ہن جو پنهنجو شناختی کارڈ واضح تھی ويو، جے میں پورو ریکارڈ اسين ان FIR میں لکھرايو آهي ته بابا کے کھمبڻ وقت ہی توهان جو انسان، ہی توهان جو ماڻهو جيڪو ریاستی ایجنٹ هيو اهو 2017 میں ملوث هيو۔ ایجنسیون ۽ ریاست ॿ دفعا पंहिंजा हरबा हलाया، उन्हनि ॿिन्हिनि में हू नाकाम वई। बाबा खे 2017 खां पोइ जॾहिं कोर्ट बाइज़त बरी कई त उहा रियासत जे मथां बि थुक लानत हुई त तव्हांजे माण्हूअ खे खंबे गुम कयो हुयो ऐं मिलिट्री कोर्ट में तव्हां सज़ा ॾिनी हुई, उहो बाइज़त बरी थी चुको आहे। 3 दफ़े जी हिननि जी जेका स्ट्रेटजी हुई त हिननि जा पंहिंजा ई माण्हू, मां जॾहिं थाणे ते पहुती आहियां छो मां 4 गोलियूं लॻियूं ॿुधण में आयूं त हिकिड़े सिंधीअ चयो हा आयूं। जॾहिं तव्हांखे गोलियुनि जा आवाज़ बि आया आहिनि ॿुधण में त उहा ई घिटी पई वञे। अधु मिंट जे मुफ़ासिले ते आहे त उन रियासत जो, उन पुलिस जो कमु हुयो त हीअ गोलियूं कंहिंजूं वॻियूं आहिनि, कंहिंजूं गोलियूं लॻियूं आहिनि ऐं उन कातिल खे उते ई पकड़े हा। मां इहो सिधो ऐं चिटो वाज़िह थी चवां त इन में असांजा ई पंहिंजा अहलकार मुलविस आहिनि।
दूसरी जानिब सिंध भर में सिंध के सियासी, समाजी, इंसानी हकूक़ और कौम परस्त जमायतों की जानिब से भरपूर रद्द अमल किया जा रहा है। SUP सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह, सैयद ज़ैन शाह और दूसरे रहनुमाओं ने हिदायत लोहार के कत्ल की मज़म्मत करते हुए जवाबदारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने भी हिदायत लोहार के कत्ल की मज़म्मत की है। डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि फौरी तौर पर जवाबदारों को गिरफ्तार किया जाए। जस्कम चेयरमैन सन्नान खान कुरैशी ने भी हिदायत लोहार के कत्ल की मज़म्मत की है। GS सिंध मोहाज के रहनुमा रियाज अली चांडियो ने कौमी कारकुन हिदायत लोहार के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने भी सिंध के बहादुर रहनुमा हिदायत लोहार के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने अपने जारी किए गए बयान में कहा कि हिदायत लोहार 2 बरस से ज़्यादा अरसा रियासत की कैद में रहे हैं। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने कहा कि हम सिंध में इंसानी हकूक़ और सिंध के लिए जिद्दोजहद करने वाले कारकुनान को कत्ल करने में रियासती इदारों को मुलव्वस करार देते हैं। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी इदारों से हिदायत लोहार के रियासती कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने सिंध में जिद्दोजहद करने वाले कौमी कारकुनों से अपील की है कि वो सिंध में जुल्म, जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खात्मे के लिए जिद्दोजहद तेज करें। बलोच नेशनल मूवमेंट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काजी दाद मोहम्मद रेहान ने वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध के रहनुमा सोट लोहार और ससुई लोहार के वालिद हिदायत लोहार के कत्ल की मज़म्मत करते हुए कहा कि ये वो कीमत है जो सिंधी बलोच और पश्तून पुरअमन जिद्दोजहद की अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस कत्ल की मज़म्मत करते हैं। दुख की इस घड़ी में अपनी बहनों, ससुई और सोरठ लोहार के साथ हैं। बलोच कौम से अपील करते हैं उनकी जिद्दोजहद में उनकी हर मुमकिन मदद की जाए और उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जाए। उन्होंने अपनी बयान में मज़ीद कहा कि ये सिर्फ आवाज़ों का कत्ल नहीं बल्कि नस्ल कशी की एक मुनज़्ज़म पॉलिसी है जो कई शक्लों में जारी है। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर माहरंग बलोच ने वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध के रहनुमा बहनों सोर्स लोहार और ससुई लोहार के वालिद हिदायत लोहार के कत्ल को वहशियाना करार दिया है। उसने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ससुई और सोरठ लोहार के वालिद मुमताज़ रहनुमा थे। वो जबरी गुमशुदगियों को बर्दाश्त करने के बावजूद हिदायत इंसानी हकूक़ के दिफा के लिए लगन हम सब के लिए एक मिसाल है। इस जुर्म की जिम्मेदारों का एहतिसाब होना चाहिए। डॉक्टर मारंग बलोच ने मजीद कहा कि सिंधी बलोच और दीगर मजलूम अक़वाम को पाकिस्तानी रियासती जबर के खिलाफ इज्तमाई जिद्दोजहद करनी होगी। सिंध सुजागी फॉर्म के रहनुमा सारंग जोयो ने हिदायत लोहार के कत्ल की मज़म्मत करते हुए इस वाक़ये का रियासत को जिम्मेदार करार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारंग जोयो का मजीद कहना था। दोस्तों मौजूद GS सिंधु देश जे रहबर आज़म साईं GM साहब सुबुह साण इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे। असांजी भेण सिंध जी बहादुर न्याणी वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध जी मरकज़ी कन्वीनर अदी सोरठ लोहार ऐं वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स जी मरकज़ी प्रेस सेक्रेटरी अदी ससुई लोहार जे वालिद असांजे मोहसिन, असांजे उस्ताद ऐं हिकिड़े शफ़ीक़ इंसान साईं हिदायत लोहार जंहिंखे 2017 में रियासती एजेंसियुनि जबरी तौर ते खंबे गुम कयो ऐं हुन न्याणियुनि जी जदोजहद जे ज़रिए हुनखे 2019 में जेको आहे आज़ादु कयो वियो। उनखे अॼु सुबुह जो स्कूल वेंदे कछाड़ जेका आहे बाज़ार उन में नसीराबाद में 125 ते जेके हथियारबंद हुआ उन्हनि सिधी फायरिंग करे उनखे बेदर्दी सां शहीद करे छॾियो आहे। असां सिंध सुजागी फोरम पारां इन वाक़े जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था ऐं असां सम्झूं था त इहा सिधी से रियासती दहशतगर्दी आहे ऐं असां हिननि इदारनि तां का बि घुर नथा कयूं। उन करे वारसनि पारां जेको धरणो लॻो पियो आहे असां उन धरणे जी हिमायत कयूं था ऐं सिंध सुजागी फोरम जे मर्कज़ पारां उन धरणे में शिरकत लाइ असां निकिरी रहिया आहियूं। असां सिंध जे भाषाई फर्दनि खे, सिंध जी क़ौमी तहरीक खे, सिंध जे क़ौमी कारकुननि खे अपील था कयूं त ख़ुदा हिन ज़ुल्म, हिन ॾाढ, हिन जबर ऐं बरबरी जे ख़िलाफ़ अचो, मुतहद थियो
हिन न्याणियुनि जो साथ ॾियो, उन्हनि सां गॾु अचो, हिन धड़े में वेही करे उन्हनि कातिलनि खे किरदार ताईं पहुचाइजे। असां सम्झूं था त हिन में क़त्ल में सिधी सही रियासत मुलविस आहे। जेकॾहिं रियासती एजेंसियूं मुलविस न आहिनि तॾहिं उनजी ज़िम्मेवार रियासत आहे, पर असांखे ख़बर आहे त जहिड़ी रीति ही क़त्ल कयो आहे टारगेट किलिंग जे हवाले सां, उन में सिधी सही रियासत आहे। सिंध के सियासी रहनुमा हिदायत लोहार के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये अफसोसनाक बात है कि स्कूल टीचर और सियासी कारकुन हिदायत लोहार को नामालूम अफराद ने आज टारगेट किलिंग में कत्ल कर दिया है। HRCP ने अपने बयान में कहा कि हिदायत लोहार इससे कबल 2 साल तक पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का शिकार रहे हैं और उनके अहल खाना जबरी गुमशुदगियों के हवाले से मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वाक़े को संजीदगी से लेना चाहिए। HRCP हिदायत लोहार के कत्ल की फौरी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है। HRCP आज शाम 4 बजे कराची प्रेस क्लब के बाहर हिदायत लोहार के अहल खाना के हमरा उनसे इजहार यकजहती के लिए चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा करेगी। सिंध फ्रीडम मूवमेंट की जानिब से हिदायत लोहार की शहादत पर 10 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। जारी किए गए बयान में सिंध फ्रीडम मूवमेंट की चेयरमैन सोहेल अबड़ू ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम लोहार खानदान के और कौमी कारकुनों के साथ हैं। सिंध की सियासत में ये बहुत बड़ा वाक़या है। हम इस कत्ल को रियासती कत्ल समझते हैं। साईं GM सैयद के वफादार साथी और सिंध के बुजुर्ग रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार का 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। हम एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स कमीशन और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल अक़वामी इदारों से अपील करते हैं कि वो इस होलनाक वाक़या का नोटिस लें और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की रियासत और इसकी एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सजा दी जाए। इंतहाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का जमशेरो इंटरचेंज पर धरना। पीर साहब पगारा ने कहा कि इलेक्शन का नतीजा 2 से 2.5 माह पहले बिक चुका था। पेमेंट भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसले करने वालों को सोचना होगा कि उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। लियाकत जतोई ने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। फहमीदा मिर्जा ने कहा कि आइन को मजाक बना दिया गया, सिंध को कानूनी बनाकर उसका सौदा कर दिया गया। सायरा बानू बोली, अपने हकूक की जंग खुद लड़ना पड़ेगी। एहतजाज मुक्तदर हलकों के सामने भी किया जा सकता है। फंक्शनल लीग के सरबराह सदरुद्दीन राशिदी का सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा। जमायत इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की भी शिरकत। बोले, कराची में जमायत इस्लामी और PTI का मैंडेट छीना गया। अयाज लतीफ अली जो बोले, सिंध से एक बार फिर धोखा किया गया। लोग समझ चुके हैं कि करप्शन के खिलाफ बयानात सिर्फ दिखावा हैं। JUI के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि 10 से 15 हलके खोले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर कादिर मक्सी की तरफ से दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। मुबैना धांधली के खिलाफ GDA और कौम परस्त जमायतों के जामशुरू में जारी धरने से खिताब करते हुए पीर पगारा का कहना था कि इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज आईनी हक है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब कोई नेशनल लेवल का लीडर नहीं बचा। तमाम सियासी जमायतें मुल्की सतह से नीचे जा चुकी हैं। हम इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 2.5-3 माह पहले ही इलेक्शन नताइज बिक चुके थे, अदायगी भी हो गई थी। उन्होंने बताया कि फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने का बचा क्या है। या माशाल्लाह लग सकता है या इमरजेंसी लग सकती है। अल्लाह हमारी फौज और जजेस की रहनुमाई फरमाए कि वो कौम के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने तनबिया दी कि इलेक्शन के बाद अब महंगाई आसमान पर जाएगी। साबिक वजीर आजम के हवाले से सरबराह GDA ने कहा कि मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। तोशाखाना से नवाज शरीफ और जरदारी ने भी गाड़ियां ली, तो तोशाखाना में सजा सिर्फ इमरान खान को क्यों हुई? इंट्रा पार्टी इंतखाबात तमाम पार्टियों ने एक जैसे करवाए, लेकिन भले का निशान सिर्फ PTI से क्यों लिया गया? उन्होंने ऐलान किया कि सबके साथ मिलकर पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाएंगे।
उन्होंने दावा किया कि अगर हम बाइकआउट करते तो मुखालिफिन एक्सपोज नहीं होते। ये लोग अब अंदरूनी और बैरूनी तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। जो जीता वो खुद परेशान है और सर पकड़कर बैठा है। मेरी नज़र में हाँ बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज़्ज़त नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा पीर सदरुद्दीन राशिदीन ने कहा कि आज का इज्तिमा इलेक्शन में धांधली के खिलाफ है और अवाम का हक वापस लेने तक ये जिदोजहद जारी रहेगी। उनका कहना था कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराया गया, लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और पुरुम्मीद हैं कि मुस्तकबिल में इस मुल्क के लिए अच्छा फैसला होगा। उन्होंने कहा कि आज का इज्तिमा इलेक्शन में धांधली के खिलाफ है, लेकिन इज्तिमा का मकसद ये नहीं कि एक दिन में अहदाफ हासिल कर लें। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मेरा भाई लंदन से घोड़े पर आ गया लेकिन घोड़ा लंगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि पीर पगारा ने अपने फैसले खुद करते हैं और अवाम का हक वापस लेने तक ये जिदोजहद जारी रहेगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा फहमीदा मिर्जा ने कहा कि 2018 और 2024 के इंतखाबात में सिंध का सौदा हुआ है। उनका कहना था कि हर जमात 2 दिन में पैदल काफिलों की सूरत में यहाँ पहुंची है। ये लोग किसी ATM के पैसे पर नहीं, अपने जज्बे पर यहाँ पहुंचे हैं। फहमीदा मिर्जा ने बताया कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है, अवाम के हक पर डाका मारा गया है। धरने से खिताब करते हुए फहमीदा मिर्जा ने अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि बताया जाए अवाम के हकूक गजब करने की क्या कीमत लगाई गई। उन्होंने बताया कि सिंध के अवाम को हक मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज बच्चे बच्चे की जिबान पर धांधली का तस्करा है, आप पर उंगलियां उठ रही हैं। अब सिंध के अवाम चुप नहीं रहेंगे, चाहते हैं सिंध में इन तमाम जमायतों का इत्तेहाद बने जिनके साथ धांधली हुई है। हम हकीकी जमहूरियत के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। फहमीदा मिर्जा का कहना था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा वालों को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहे। हम जमहूरियत के लिए जिदोजहद जारी रखेंगे। हमें मौजूदा इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन नामंजूर है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के रहनुमा सायरा बानू ने एहतजाज से खिताब करते हुए कहा है कि हमें अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। उनका कहना था कि हम आपकी मोहब्बत में यहाँ जमा हुए हैं और बताया है कि आप कमज़ोर नहीं हैं। क्या आप हमारी मोहब्बत को कमज़ोरी समझते हैं? उनका कहना था कि अंग्रेज़ गैरतमंद थे, लेकिन हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? सिंध के अवाम पर जुल्म किया गया है। सायरा बानू ने दावा किया कि गर्दन कटवाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं।
GDA के रहनुमा लियाकत जतोई ने कहा कि हम जाली मैंडेट को तस्लीम नहीं करते हैं। लियाकत जतोई का कहना था कि जरदारी साहब आपकी अय्याशियाँ ख़त्म हो रही हैं। आसिफ जरदारी ने ऐसा क्या किया है कि उसे चौथी बार सिंध दे दिया गया। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम और हम एक साथ खड़े हैं। पीर पगाड़ा को कहता हूं कि सिंध के अवाम आपके साथ हैं। हम पर जुल्म हो रहा है और हम ही पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। उनका कहना था कि हम जाली मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। सिंध को हकूक मिलने तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि इंतखाबात फ्रॉड हैं। सिंध के साथ धोखा किया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ GDA की जानिब से जामशरू में जारी धरने से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीदें छीन। इलेक्शन जो वोट रुगो कुर्सीअ ते माण्हू तब्दील न कंदो आहे। इलेक्शन जो वोट इख्तियार ॾींदो आहे कुझु माण्हुनि खे तव्हांजे क़िस्मतुनि जा फ़ैसिला करण जो। तव्हांजो इल्मु खसिजी वियो आहे, तव्हांजा स्कूल तबाह आहिनि, तव्हांजा कॉलेज तबाह आहिनि, तव्हांजूं नौकरियूं विकामनि थियूं। तव्हां खां हिननि उम्मीद खसे वरिती आहे। पीपल्स पार्टी 15 सालनि में ॿियो जेको कुझु सो कयो पीपल्स पार्टी सिंध जे माण्हुनि खां उम्मीद खसे वरिती आहे। सिंध जे माण्हुनि खां आस खसे वरिती आहे। ॿार पढ़नि था, उन्हनि खे ख़बर आहे त पढ़ूं पिया नौकरी विकामी वेंदी। पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ रुपया ॾेई नौकरी को ॿियो वठी वेंदो। ॿार पढ़नि था, उन्हनि खे ख़बर आहे त असीं इम्तिहान ॾींदासीं, MDCAT जो पेपर आउट थी वेंदो। जेको 30 लख रुपया ॾींदो सो पेपर आउट करे पास थी वेंदो। आबादगार ज़मीन आबाद कनि था, उन्हनि खे ख़बर ई कान्हे त जॾहिं फसल लहंदो तॾहिं कमांद जो अघु कहिड़ो हूंदो। धरने से जमीयत उलमा इस्लाम फेक के राशिद सुमरो ने भी खिताब किया। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध में अक्सर नो इलेक्शन कराए जाएं। उनका कहना था कि सिंध में सौदागरों को आपकी आवाज बराह रास्त जानी चाहिए। सिंध के इलेक्शन पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। सिंध में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। राशिद सुमरो ने तनबीह दी कि अगर उनका वजीर आला बना तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। STP सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने खिताब करते हुए कहा कि न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए और उसके बाद मुनसिफाना आज़ादाना इंतखाब होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुआशरा आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट ना हो जो उन्होंने अपनी मर्जी से लोग उठा के पार्लियामेंट में भेजे हों। ऐसी पार्लियामेंट नामंजूर है। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी गली कोचे में चले जाएं, कश्मीर में जाएं, बदीन में जाएं, इवन लाड़काना और नवाबशाह में जाएं, एक आम आदमी से पूछे कि जरदारी के बाबत आपकी राय क्या है, तो मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं, वो तबसरा करने से पहले जो उसके मुंह में 2-4 गालियां होती हैं वो जरदारी के नाम पे दे देता है। इतना नामकबूल आदमी कैसा सिंध का मैंडेट जो है वो 80% या 70% के लिए एक न्यूट्रल सरकार जो हकीकी अवामी जमायतें हैं, अपोजिशन की जमायतें हैं, उनके मशवरे से न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए और उसके बाद मुनसिफाना आज़ादाना इंतखाब होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट न हो जो उन्होंने अपनी मर्जी से हैंड पिक लोग उठा के पार्लियामेंट में भेजे गए हों। ऐसी पार्लियामेंट नामंजूर है। हम आइन की हुक्मरानी के हक में हैं कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो। आइन की हुक्मरानी तब हो सकती है जब पाकिस्तान के चारों फेडरेटिंग यूनिट्स सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, लेकिन 3 महकूम कौमें वो पंजाब के सूबे के बराबर सियासी, समाजी, मुआशी हकूक की मालिक हो।
मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम गवर्नर पंजाब के लिए ज़ेर गौर है। राना सनाउल्लाह को ज़िमनी इलेक्शन न लड़ाया गया तो गवर्नर के मनसब पर लाया जाएगा। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमायतें टफ टाइम दे सकती हैं। बलीगुर रहमान नरम मिजाज रखने के बाइस आइंदा सेटअप के लिए मौजू नहीं। जमहूरी वतन पार्टी का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान की कौमी शाहराह पर दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। धरने के बायस सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई, जिसके बायस कोयटा से शिकारपुर और दीगर अजला को जाने वाली ट्रैक मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। धरने की क़यादत साबिक सूबाई वजीर नवाबजादा घोराम बुगटी कर रहे हैं, जबकि हज़ारों कारकुनान इसी में शरीक हैं। मुजाहिरीन ने मुजाहिरीन का PP 10 और NA 253 के 44 पोलिंग स्टेशन के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने का मुतालबा किया। जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदम एहतमाद के हवाले से फैज़ हमीद का नाम गलती से लिया था। अपने एक बयान में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में अदम एहतमाद के हवाले से फैज़ हमीद का नाम गलती से ज़बान पर आ गया था। उन्होंने कहा कि मैं 2018 में धांधली का जिम्मेदार कमर बाजवा और फैज़ हमीद को समझता हूँ। इन मामलात पर बहस के बजाय उन्हें तारीख के हवाले कर दें। फजलुर रहमान ने कहा कि मैं समझता हूँ कि अदम एहतमाद और इल्ज़ामात मामूली हैं। ये सब चीज़ें पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है और रही हैं। मुल्की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। सरबराह JUI ने कहा कि मुझे अदलिया और दीगर अदारों पर एतमाद नहीं और मैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और इस दौरान हमें मुस्तकिल तनकीद का निशाना बनाया गया और हमें रोने और चीखने की भी इजाज़त नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 5 हलकों की कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 220 से JUI फे के मोहम्मद उस्मान बादीनी, जबकि NA 261 से JUI फे के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कामयाब करार पाए हैं। NA 262 से PTI हिमायत याफ्ता आदिल खान बाजई और NA 264 से PP के जमाल खान रईसानी को कामयाब करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन में सूबाई असेंबली के हलका NA 265 से JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी कामयाब करार दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आजम उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब के हिफाजती और राहदारी जमानत के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। उमर अयूब वकील बाबर ऐवान के हमरा अदालत में पेश हुए। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ जमायतों से मिलकर मुश्तरका लाए अमल बनाएंगे। PTI के वफद ने असद कैसर की सरबराही में जमायत इस्लामी के वफद से मुलाकात की। नायब अमीर जमायत इस्लामी मियाँ असलम की रिहाइशगाह पर हुई। वफद में बैरिस्टर सैफ शौकत, यूसुफजई और दीगर शरीक है। नायब अमीर जमायत इस्लामी मियाँ मोहम्मद असलम ने वफद का खैर मकदम किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने और रहनुमा जमायत इस्लामी लियाकत बलोच के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन में अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ दीगर जमायतों को इकट्ठा कर रहे हैं और मुश्तरका लाए अमल बनाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना था कि अब मुल्क के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे बल्कि अवाम फैसले करेंगे। इलेक्शन के बाद मुल्क में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ गया है। कल पूरे मुल्क में एहतजाज की काल दी हुई है। अवाम से अपील है एहतजाज के लिए बाहर निकले। रहनुमा जमायत इस्लामी लियाकत बलोच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलेक्शन में नताइज को ज़बरदस्ती तब्दील किया गया और अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। हम इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करते हैं। PTI ने पेशावर के इंतखाबी नताइज के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। ज़रा ने बताया कि नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में पेशावर से पार्टी के नौमुंतखब अराकीन, असेंबली उम्मीदवारों को और पार्टी क़यादत ने शिरकत की।
इजलास में पार्टी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों और क़यादत ने इंतखाबी नताइज के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़रा का कहना है कि उम्मीदवारों ने धांधली की जिम्मेदारी और ओडीसी पेशावर आफाक वजीर पर डाल दी। इस पर इजलास में पेशावर के इंतखाबी नताइज के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया। आज एहतजाज किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कम सिन मुलाजमा पर तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हाफिज की अहलिया मुलजमा सोमिया आसिम पर फर्द जुर्म आयद करते हुए आइंदा समात पर शहादतें तलब कर ली, जबकि मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। सिविल जज उमर बशीर ने कम सिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस की समात की और इस दौरान मुलजमा सोमिया आसिम वकला के हमरा अदालत में पेश हुई, जहां फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई, जिसके बाद मुलजमा ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तजज़िये और तबसरे। पाकिस्तान की नई हुकूमत को कितनी जल्द IMF से रुजू करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त IMF के जिस प्रोग्राम पर अमल कर रहा है वो ख़त्म होने वाला है। माहिरीन मईशियात का कहना है कि उसे अपनी मईशत को संभाला देने के लिए जितनी जल्द मुमकिन हो दोबारा IMF के पास जाना होगा। पाकिस्तान की गुज़िश्ता मखलूत हुकूमत ने आम इंतखाबात में जाने से कबल IMF से $3 अरब का एक मुआहिदा किया था, जिससे डिफ़ॉल्ट से बचने में मदद मिली। पाकिस्तान में हाल ही में आम इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं और सियासी जमायतों के दरमियान हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी है। ऐसे में जो ही वफाक में हुकूमत की तश्कील मुमकिन होगी, उसे नए माली मुआहिदे के लिए IMF से रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी बहरान का खतरा बदस्तूर मौजूद है। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान की निगरां हुकूमत IMF के कर्जा प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रही है। इस प्रोग्राम के लिए की जाने वाली कानून साजी IMF को पाकिस्तान के इक्तिसादी मामलात पर फैसले करने के साथ साथ इंतखाबात की निगरानी करने की इजाज़त देती है। IMF से मुज़ाकरात अगली हुकूमत को सब बातें तस्लीम करनी होंगी। IMF की जानिब से पाकिस्तान के साथ नए मुआहिदे के इम्कानात पर तबसरा की दरख्वास्त का फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया गया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल कैसी है? पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त तकरीबन $8 अरब हैं, जो उसके बमुश्किल 2 माह की दरामदी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। ताहम ये सूरत हाल 1 साल पहले के मुकाबले में बेहतर है, जब पाकिस्तान के पास लगभग $3 अरब थे। पाकिस्तान को 2 माह में $1 अरब के बॉन्ड्स की अदायगी करने से जिससे उसके ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम हो जाएंगे। पाकिस्तान पर कितना कर्ज है? पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ उसकी मजमूई कौमी पैदावार के 70% से ज़्यादा है। IMF और क्रेडिट रिटर्निंग इदारों के तखमीना है कि पाकिस्तान को अपनी आमदनी का 50 से 60% हिस्सा कर्जों के सूद की अदायगी पर खर्च करना होगा, जो दुनिया के किसी भी बड़ी मईशत के लिए बदतरीन शरह है। कर्जे अवाम को किस तरह मुतासर कर रहे हैं? पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ टैक्सों और ईंधन की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में ज़बरदस्त कमी के साथ अफरात ज़र की शक्ल में मुतासर कर रहा है, जो इस वक्त 30% के लगभग है। ये तवक्का की जा रही है कि इस साल के आखिर तक अफरात ज़र में कुछ कमी होगी, लेकिन इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि इसकी सतह पर फिर भी मरकज़ी बैंक के अहदाफ से 5 से 7% तक बुलंद रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखें और याद रखें, इनकलाब हमेशा नौजवान लाते हैं, लेकिन जिस माशरे में नौजवान चमचागिरी की राह पर चल पड़े, वहाँ इनकलाब नहीं गुलामी राज करती है। साथ सलामत।